लिखा नहीं, जेड से स्क्रीनशॉट मार के नाउ उन्होंने क्या दिया यहाँ पे देखो, क्या गिवन हियर a cylindrical package is bound on a center of by example. Write down this example. तो एग्जाम्पल हुआ है बताने का ना, हो गएगा क्यों. You write down this example. Right up to here. Okay. Have you written this example? लिखा है क्या आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा क्या? अब देखो यहाँ पे cannot wait for a long time. Is given here a cone winder fitted with a cam operated linear traverse motion. Obviously it is cam operated linear traverse motion. What is that? Novel threaded in winding is used for the production of cheeses. Determine the maximum and minimum angle of wind theoretically available from the following particulars. Here they ask to calculate maximum and minimum angle of wind. Right. Maximum and minimum angle of wind means what? They ask to calculate theta
minimum angle of point and theta maximum. Angle of point. So for that, what they have given? They have given the surface speed of drum 400 to 800 meters per minute. 400 to 800 meters per minute. They have given surface speed. They have given camshaft speed. camshaft speed, that is 200 to 400 RPM. And traverse length is 150 millimeter. Again they ask what is the maximum surface speed that can be used when an angle of wind is 12 degrees required. So they have asked for the maximum surface speed Vs when theta is 12 degrees. When theta is 12 degrees. Angle of wind is 12 degrees. So these two things they ask to calculate. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अपने को क्या पता है? खाली अपने पास डाटा कितना है? अपने पास डाटा है सरफेस स्पीड है ड्रम का, कैमशाफ्ट स्पीड है अपने पास एंड ट्रैवर्स लेंथ है. बाकी का तो डाटा है नहीं. तो सबसे पहले हम जो भी डाटा दिया है उसके भरोसे थीटा मिनिमम एंड थीटा मैक्सिमम निकालने के लिए देखेंगे. पहले थीटा मिनिमम के बारे में थिंक करते हैं. थीटा मिनिमम निकालना है मतलब क्या निकालना है आपको? व्हाट यू वांट टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड आउट द tan theta. Tan theta minimum. तो आप मुझे बताइए कैसे निकाल सकते हैं हम tan theta minimum? tan theta का फॉर्मूला क्या है? हाउ टू कैलकुलेट tan theta? आप बताओ मुझे जल्दी. tan theta कैसे निकालेंगे? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फॉर्मूला भी बताया था. VT by VS. Yes, it is VT by VS. ये बाकी बच्चे क्यों चुप बैठे मुझे पता नहीं. या तो आप लोगों की मजाक देखने के लिए बैठे हैं या खुद गधे हैं, मुझे पता नहीं. खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं और स्मार्ट समझते हैं. मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था. मैंने तो जब भी क्वेश्चन पूछा है तो या तो आंसर दो या तो सर मालूम नहीं करके बताओ ना. आप वहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? और शुड आई स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग विथ कैमरा? सब लोग कैमरा पे आना चाहिए. फिर वो आपको दिक्कत जाएगा. फिर वो आपका हम नेटवर्क बचाने के लिए देखते हैं, बट आप कम्युनिकेट ही नहीं करते क्लास में. कैमरा ऑन करोगे तो आपका इंटरनेट फास्ट चला जाएगा. तो वी कैन कैलकुलेट tan थीटा. ये देखो, पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ोगे, नहीं तो आपके लिए नहीं पढ़ोगे. मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. एग्जाम्पल्स दिखते हैं आपको, इतने सिंपल है नहीं. अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आपको आएगा भी नहीं. बुक देख के भी आप निकाल के दिखाओ, 2-4 बच्चों को ही आएगा बुक देख के भी. अगर वहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिया फिर हो गया. फिर बुक का जो क्वेश्चन है उसमें चेंजेस कर दिया तो बुक देख के भी नहीं आएगा आपको, गारंटी देता हूँ मैं. सीरियस रहो एग्जाम और स्टडी के प्रति. So you can calculate theta by using Vt by Vs. Vt by Vs. So what is Vt here? Vt is the traverse velocity, and what is Vs? Vs is the surface velocity. A package. I'm talking about the package. We are going to produce here EJs. So am I having these values to calculate theta? Right now we'll think about the minimum theta.
So for that we required minimum traverse velocity. For that we required minimum surface velocity, or it may require maximum surface velocity. I don't know when theta will get minimum. When theta will get minimum. I only know that I want to calculate Vt and I want to calculate Vs. So in order to get this theta minimum, tan theta we can write here for this terms. So which traverse velocity are required and which surface velocity are required? Shall I take minimum traverse velocity to the minimum surface velocity? I don't know what I want to do. Either I want to take minimum or I want to take maximum. If I take minimum values for traverse and surface, then I will get theta minimum, or if I get maximum velocities of traverse and surface velocity, then I will get theta minimum. So first of all, it is necessary to find out what I should take, what Vt I need, minimum or maximum, what Vs I need, minimum or maximum, in order to get the theta minimum. तो थीटा मिनिमम लेने के लिए अपने को ट्रैवर्स वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, एंड सरफेस वेलोसिटी मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, ये पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यही पता नहीं अपने को कब थीटा मिनिमम हो जाएगा, कब एंगल ऑफ पॉइंट कम होगा और कब एंगल ऑफ पॉइंट बढ़ेगा। थ्योरी तो हमने पढ़ा, उस टाइम मैंने बताया भी था, शायद आपको याद नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से याद है मैंने क्या पढ़ाया आपको फाइंडिंग में, क्योंकि उस टाइम आप थ्योरी को पढ़ते ही नहीं ना बराबर, थ्योरी आपके हिसाब से तो काम नहीं आती प्रैक्टिकली। एंगल ऑफ पॉइंट कब कम होता है, एंगल ऑफ पॉइंट कब ज्यादा होता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा पहले। अब उस टाइम हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, ऐसे ही मैंने स्टेटमेंट दिया था, अब उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं वो वैसे होता है क्या। अब यहाँ पे दो रेंज दिया है आपको, 400 से 800 कुछ तो दिया है सरफेस स्पीड ऑफ ड्रम, एंड कैमशाफ्ट स्पीड दिया है 200 से 400। मतलब अपने पास क्या क्या है यहाँ पे, पहले ये ढूंढना पड़ेगा, वीटी है क्या, वीएस है क्या, ये सारी चीजें आपको ढूंढना पड़ेगा पहले। तो वीएस ऑलरेडी है आपके पास, ये क्या है, ये क्या है आपका सरफेस स्पीड ऑफ ड्रम इज व्हाट, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा है कि क्या रहता है सरफेस स्पीड ऑफ ड्रम, वो डायग्राम में वीएस रहता है, वो वीएस रहता है। इसका मतलब वीएस आपके पास है बट उसका रेंज है 400 टू 800, तो इसको 400 को मिनिमम बोल सकते हैं, 800 को मैक्सिमम बोल सकते हैं, क्योंकि इतना तो अंक गणित अपने को आता है ना। तो वीएस मिनिमम आपके पास है, वीएस मैक्सिमम आपके पास है, वीएस मिनिमम आपके पास है, वीएस मैक्सिमम आपके पास है। सो आई कैन राइट हियर ओनली, मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है, जगह चाहिए इस एग्जांपल को, यहाँ पे लिख देता हूँ। You can write Vs minimum and Vs maximum. You can write Vs minimum and Vs maximum. Okay. तो अब आ गया क्वेश्चन वीटी का। अब ये दो चीजें हैं, हम देखेंगे बाद में इसको कैसे मिनिमम आता है मैक्सिमम आता है। अब आता है बात वीटी का, ट्रैवर्स वेलोसिटी का। तो ट्रैवर्स वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या दिया उन्होंने, ए कोन वाइंडर इज फिटेड विद कैम ऑपरेटेड लीनियर ट्रैवर्स मोशन। का सीधा मतलब है आपके पास कैम है, दिस इज अ कैम एंड फॉलोअर सिस्टम इज देयर। यहाँ से यान जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक ड्रम रहेगा, प्लेन ड्रम, तो यहाँ पे आपका चीज है ना, चीज बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक चीज बन रहा है, दिस इज चीज।
ये ड्रम है, ये कैम है, ये फॉलोअर है, यहाँ से यानी इसके ऊपर जाएगा, ये जैसा मूवमेंट करेगा लाइक दिस, योर yarn इज गोइंग टू वाइंड ऑन द पैकेज। ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ट्रैवर्स वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये जो फॉलोअर है ये कितना स्पीड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अगेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आता है, क्योंकि डबल ट्रैवर्स देखेंगे वेलोसिटी मतलब क्या है, ऐसे ऐसे करेगा ये, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाता है कि आपका कैम नहीं जाता है, ऐसे जाता है वो, तो ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे स्पीड में जा रहा है तो बोलेंगे वीटी ट्रैवर्स वेलोसिटी, मतलब यहाँ से जाएगा यहाँ तक और यहाँ से आएगा यहाँ तक, कितने स्पीड से आता है, दैट इज ट्रैवर्स वेलोसिटी, दैट इज ट्रैवर्स वेलोसिटी। तो इसको हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ, लॉजिकली अगर थिंक करोगे आप कैसे निकाल सकते हैं, झट से बताओ। ठीक है मैं बताता हूँ, कैम मूव हो रहा है ना, मतलब कैम को कुछ तो स्पीड रहेगा, कैम को कुछ तो स्पीड रहेगा, ये कैम मूव हो रहा है ना सर्कुलर में, कैम को कुछ तो स्पीड रहेगा, वो स्पीड यहाँ पे दिया है, कैम शाफ्ट स्पीड 200 से 400 रिवॉल्यूशंस पर मिनट आरपीएम। तो हम इसका स्पीड ले लेंगे, वीटी कैसे निकालते हैं देखो यहाँ पे, वीटी इज इक्वल टू ये कैम शाफ्ट स्पीड, कैम घूम रहा है और उसके साथ अपना ट्रैवर्स भी घूम रहा है, फॉलोअर भी घूम रहा है, क्योंकि कैम एंड फॉलोअर सिस्टम दिया है, ऐसे। तो इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा, स्पीड इनटू डिस्टेंस, ये आपको वेलोसिटी आएगा, ये आपको वेलोसिटी आएगा, कैम शाफ्ट स्पीड इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रैवर्स है, एक साइड से ही नहीं घूम रहा है वो, मतलब एक डायरेक्शन देख लिया तो उसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कुछ टाइम तक वो एक डायरेक्शन पकड़ता है, कुछ टाइम के बाद वो डायरेक्शन चेंज करता है, फिर से कुछ टाइम के बाद, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा करता है वो। तो इसका डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, 150 mm नहीं लेंगे, ट्रैवर्स लेंथ तो खाली एक साइड से दूसरा साइड रहता है, ये ट्रैवर्स लेंथ के डेफिनेशन में हमने देखा था सेकंड ईयर में, खाली लेफ्ट टू राइट घूमता है तो ट्रैवर्स लेंथ होता है, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है तो डबल ट्रैवर्स होता है। तो ट्रैवर्स लेंथ इज 300 हियर millimeter, 300, क्यों 300 लिया, बिकॉज इट हैज टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, but it is in millimeter, so I will convert it into the meter because the rest values are in meter, so I will convert it into the meter. So when you do this you will get the traverse velocity. Now you want Vt minimum, अगर आपको Vt minimum चाहिए, अगर आपको Vt minimum चाहिए तो कैसे लेंगे, Vt minimum is equal to कैम शाफ्ट स्पीड मिनिमम लेंगे, क्योंकि मिनिमम कैम शाफ्ट पे आ सकता है ऐसा मानते, तो 200 इंटू फिर ये 300 डिवाइडेड बाय 1000, ये जब करोगे तो Vt मिनिमम कितना आता है बताओ, ये 2 जीरो गए, एक 2 जीरो गए, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 60, so your Vt minimum is 60 meters per minute, Vt minimum is 60 meters per minute, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 meters per minute। अब Vt मैक्सिमम निकालना है आपको, कैम शाफ्ट स्पीड कितना है 400, मैक्सिमम के लिए तो इतना ही रहेगा ना मैक्सिमम स्पीड, तो वही पकड़ना पड़ेगा, फिर से 300 बाय 1000, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 120, ये कितना आता है 120 मीटर पर मिनट। तो अपने पास दो Vt आ गए, एक 60 आ गया, एक 120 आ गया। अब एग्जांपल बहुत सिंपल है, आप इसमें कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो दो Vt अपने पास आ गए, देखते हैं इसको, थीटा मिनिमम कब आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों मिनिमम रहेगा तब आता है, या एक मिनिमम एक मैक्सिमम रहता है वो आता है, तो दैट पॉइंट वी विल कवर।
उस पॉइंट को हम कवर करेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लेता हूँ। वीएस अपने पास है, सरफेस वेलोसिटी हम वाई एक्सिस पे लेंगे एंड ट्रैवर्स वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे लेंगे यहाँ पे। अब देखो वीटी मिनिमम 60 है, वीटी मैक्सिमम क्या है 120 है, वीएस मिनिमम 400 है एंड वीएस मैक्सिमम कितना है 800 है। ओके, वीएस मैक्सिमम 800 है। अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स मैच करते हैं, 62 40 122 40, फिर हम करते हैं 62 800 एंड 122 800। अब इन सारों को हम मिलाते हैं। इसे समझने के लिए हम खाली लाइन मार देते हैं, नहीं मारा तो भी चलेगा, मेरे हिसाब से मार देते हैं। और क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं ओरिजिन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, कौन बचा थोड़ी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ थीटा मिनिमम कहाँ पे रहेगा, दिस इज वीएस, दिस इज वीटी, थीटा मिनिमम कहाँ रहेगा, मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी ओ ई एंड एफ। यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा मिनिमम दिखा रहा है, कौन सा एंगल थीटा मैक्सिमम दिखा रहा है, थीटा मिनिमम। हाँ बताओ, कैसे बताओ, ए कौन सा बोला, ई ओ बी थीटा मिनिमम। ई ओ बी, ई ओ बी, यहाँ पे एक पॉइंट देना भूल गया ना मैं, ए बी सी डी ई एफ, नहीं ई ओ बी नहीं है, एच, ई ओ बी नहीं है, ये मतलब ये हो गया ना, ई ओ बी नहीं है, ई ओ बी इज नॉट थीटा मिनिमम। ये डायग्राम देखा है कि नहीं, ये थीटा कहाँ सा है, ये वी एस है, ये वी टी है ना, तो ये जब इस साइड में जाता है वो एंगल ऑफ पॉइंट क्रिएट करता है, ट्वेल एंगल क्रिएट करता है वी एस की तरफ। तो यहाँ पे वी एस की तरफ कैसे जाना पड़ेगा, इस तरीके से जाना पड़ेगा, ये वी एस है यहाँ पे, आप लॉजिकली थिंक नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम जाता है। तो यहाँ पे देखो ये थीटा मिनिमम है, एंगल देखो इसका, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है, ठीक है, देखेंगे तो ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, तो इसमें सबसे कम कौन सा है, ये वाला है,
मतलब FOA, और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल, ये ज्यादा है, थीटा मैक्सिमम, मतलब FOD, FOD, FOD is the theta maximum, FOA is the theta minimum. अब थीटा मिनिमम आता कब है, कहाँ पे आ गया, देखो थीटा मिनिमम क्या VS था और क्या VT था, क्योंकि थीटा अपने को पता है, थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज व्हाट, VT by VS, VT by VS, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VT by VS. अब यहाँ पे tan लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू VT by VS. ओके, तो कब VT क्या होना चाहिए और VS क्या होना चाहिए थीटा मिनिमम आने के लिए, अब बताओ डायग्राम देख के. अब तो मैंने थीटा मिनिमम भी बताया, मैक्सिमम बताया, कब होना चाहिए, VT क्या होना चाहिए और VS क्या होना चाहिए. तो थीटा मिनिमम आने के लिए VT क्या चाहिए और VS क्या चाहिए. VS 800 और VT 60. VT 60 होना चाहिए, ये बात है ना. अगर देखेंगे हम परपेंडिकुलर के लिए वो 60 है, और इधर डालेंगे तो 800 है. सीधा मतलब है VS 800 चाहिए मिनिमम एंगल के लिए, मिनिमम एंगल के लिए VS 800 चाहिए और VT 60 चाहिए. अब ये 60 क्या, ये VT क्या है, ये VT क्या है, मिनिमम है, ये VT मिनिमम, और ये VS क्या है, ये VS मैक्सिमम है, VS मैक्सिमम है. तो कब हमें एंगल थीटा मिनिमम मिलता है, एंगल थीटा मिनिमम कब मिलता है, VT मिनिमम टू दी VS मैक्सिमम. और tan थीटा मैक्सिमम कब मिलेगा, अब इससे आपको ये भी अंदाजा आया होगा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब VT मैक्सिमम रहेगा और VS मिनिमम मिनिमम रहेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे हम VT मैक्सिमम डिवाइडेड बाय VS मिनिमम. अब ये दोनों फॉर्मूले आपने क्रिएट कर दिया, अब आप आंसर निकालो, थीटा निकाल के बताओ मुझे, थीटा मिनिमम थीटा मैक्सिमम निकाल के बताओ, क्योंकि अभी आपके पास VT मिनिमम भी है, VT मैक्सिमम भी है, VS मिनिमम भी है, VS मैक्सिमम भी है. तो इससे आप ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, tan थीटा मिनिमम भी निकाल सकते हो, tan थीटा मैक्सिमम भी निकाल सकते हो. निकाल के बताओ मुझे कितना आता है. थीटा मिनिमम 4.28, थीटा मैक्सिमम 16.29. थीटा मिनिमम कितना आता है, 4.28. 0.28 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 4 डिग्री 8 मिनट्स. ओके, और थीटा मैक्सिमम कितना आया, 16 डिग्री 29. 16 डिग्री 29. ओके, तो थीटा मिनिमम और थीटा मिनिमम ऐसा आता है. अगर किसी का आया नहीं है तो बाद में घर में करो कैलकुलेशन. अब ये सिंपल मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ाते नहीं बैठूंगा आपको, कि अब इसमें वैल्यू डालने के बाद कैसे आएगा आंसर वगैरह वगैरह, इसमें कंसेप्ट बताने में इतना टाइम चला जाता है, तो और वो क्या करेंगे. तो यहाँ पे थीटा वी मिनिमम कितना लिया था आपने, वी मिनिमम सॉरी VT मिनिमम 60 था, और सरफेस वेलोसिटी मैक्सिमम 800 था. 60/800 किया तो tan इनवर्स ऑफ 60/800 किया तो ये आंसर आता है. और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, 120/400 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा. अब आपके पास दो एंगल्स है, अब आपके पास दो एंगल्स है, तो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ. तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिया, दोनों एंगल आपने निकाला, VT मिनिमम सॉरी थीटा मिनिमम एंड थीटा मैक्सिमम तो आपने निकाला.
अब क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द मैक्सिमम सरफेस स्पीड दैट कैन बी यूज व्हेन एन एंगल ऑफ वाइंड इज 12 डिग्री। सरफेस स्पीड मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम सरफेस स्पीड कितना ले सकते हो। अगर मुझे क्या चाहिए, थीटा कितना चाहिए, 12 डिग्री। तो पहले हम चेक कर लेते हैं वो जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, उससे उतना आता है कि नहीं आता है, वो पहले हम चेक करते हैं। क्योंकि सरफेस स्पीड मैक्सिमम उनको चाहिए, कितना चाहिए, बट वो हमारे कंडीशन में आता है कि नहीं वो पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू, इसका ही सहारा लेंगे हम फिर से, Vt बाय Vs बाय Vs का सहारा लेंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैवर्स वेलोसिटी हम कितना जा सकते हैं। सरफेस वेलोसिटी हम मैक्सिमम लेने वाले हैं, और उसके लिए ट्रैवर्स वेलोसिटी कितना तक हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिटेशन है, ये ट्रैवर्स वेलोसिटी हमारी लिमिटेशन है। तो हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं ये ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, सीधा सीधा उनका वैल्यू ले लेंगे, tan 12, क्योंकि उन्होंने बोला कि थीटा 12 मुझे लाना है, बस 12 डिग्री चाहिए। तो उसके लिए मैक्सिमम सरफेस स्पीड कितना चाहिए। अब Vt हम देखते हैं उतना आता है क्या Vt अपने एग्जिस्टिंग कंडीशन से, और Vs हम मैक्सिमम Vs कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम Vs कितना ले सकते हैं, 800। 800 ले सकते हैं। 800। तो हम अभी मैक्सिमम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू ही ले रहे हैं अभी। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, इफ यू कैलकुलेट दिस, तो Vt कितना आता है बताओ मुझे, कैलकुलेट करके थोड़ा सा कैलकुलेटर से कितना आता है Vt। 0.2125। ऐसे आता है 0.125, सर 170.0. 170.0 ना, 04. 04, सो 170 मीटर्स पर मिनट, 170 मीटर्स पर मिनट आता है आपका Vt। सॉरी क्या हो गया ये, 170 मीटर्स पर मिनट आता है। अब अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये पॉसिबल है क्या, ये जो क्वेश्चन हमने देखा इसमें Vt मैक्सिमम कितना है, Vt मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 120. 120 है, और ये बता रहा है मुझे 12 डिग्री चाहिए एंगल ऑफ वाइंड, और तो उस डिग्री से हम मैक्सिमम वेलोसिटी कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना ले सकते हैं 12 डिग्री के लिए। और यहाँ तो मुझे 170 मिल रहा है मीटर्स पर मिनट। तो अब इसका उल्टा करेंगे, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन राइट देयर दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज पॉसिबल दैट वी विल सी। tan 12, अगेन 12 को ही लेना है क्योंकि 12 डिग्री के लिए हमारा सारा चीजें चल रहा है। tan 12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ Vt विल गो विद द Vs, विल ट्राई टू फाइंड आउट डायरेक्टली Vs। Vs मैक्सिमम Vt कितना आता है 120. 120। So when you do this, you will get the answer of Vs. Calculate and tell me the Vs. फाइव 564.4। एक मिनट, Vs maximum for this particular angle of wind is 564.44 मीटर पर मिनट। 0.44 मतलब 564 हम ले सकते हैं, 564 मीटर्स पर मिनट।
तो ये आंसर है आपका 564 तक ही जा सकते हैं आप, अगर आपको 12 एंगल चाहिए, एंगल ऑफ वाइंड का 12, सॉरी इफ यू वांट 12 डिग्री एंगल ऑफ वाइंड देन यू कैन गो विद द मैक्सिमम सरफेस स्पीड ऑफ ड्रम इज 564 मीटर्स पर मिनट। तो ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है आपको, इस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। डायरेक्ट ले लिया तो भी चलेगा आपको, मैं खाली कंसेप्ट बताने के लिए VT मैक्सिमम निकाल के देखा। क्रॉस चेक करना पड़ता है प्रैक्टिकली, इसीलिए मैंने वो लिया, इसलिए बुक वालों ने भी लिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगी कि ये क्यों लिया। प्रैक्टिकली आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। चलो, आपने अगर स्क्रीनशॉट मार के रखा है तो हम अभी आगे चलते हैं। जस्ट होल्ड, एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो गया, दोनों पार्ट हमने निकाला। चलो भी कुछ तो है जान, पिछले एग्जाम्पल का ही शायद। सही है, पैकेज वगैरह ठीक है, ओके। Now we'll see the examples based on clearer, sorry, tensioner. Winding rate, winding angle, coil angle, traverse velocity, surface velocity, ये सारे एग्जाम्पल हमने अभी खत्म कर दिए। अब हम जाएंगे टेंशनर की तरफ। ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है, टेंशनर मतलब क्या है and what is the function of tensioner. Just hold on, I have one call. Okay, so what is the function of tensioner? To maintain the tension on the yarn throughout the package binding. ये हमने देखा है, right? कौन कौन से टाइप के टेंशनर रहते हैं, कौन से टाइप के टेंशनर रहते हैं? डिस्क एंड गेट टाइप रहते हैं। गेट ओके, तो दोनों टाइप के एग्जांपल हम देखेंगे, डिस्क टाइप का भी देखेंगे और गेट टाइप का भी देखेंगे। दोनों टाइप के टेंशनर में हम टेंशन कैसे निकालते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन सेकंड ईयर, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन सेकंड ईयर। कैसे निकालते, फॉर एग्जांपल डिस्क हम लेते हैं, डिस्क में कैसे निकालते हैं? डिस्क में टेंशन कैसे निकालते हैं? ये इनपुट टेंशन है, क्या बोल सकते हैं इसको, T1, और ये आउटपुट टेंशन है, इसको हम बोलेंगे T2। ये डिस्क है तो इक्वल, यहाँ से फोर्स आ रहा है तो यहाँ से भी फोर्स आएगा, equal and opposite force will get act onto the yarn, and because your yarn is passing in between the two discs and top disc is having the load, top disc is loaded. So if we are applying the n Newton load, definitely from bottom side also you will get the n Newton load. So in that case, how we can calculate the output tension? So T2 is equal to, first of all we'll think about this tension, whatever the tension is with the yarn, that is T1,
input tension is T1, and how much tension is added by this disc. How much tension is added by this disc? How much tension this disc can add? It depends on how much force you are applying, and your yarn makes friction with the disc surfaces. It means what? You have to consider this mu. Mu is what? Whatever you are applying the force along with the this n, right? So we can able to calculate mu. Mu is nothing but coefficient of friction. So this coefficient of friction we can calculate by using this sliding force, right, and by this n applied force, right? Because हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से हम इसको यान को खींच रहे हैं ऊपर, ड्रम खींच रहा है आपका यान को, तो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एक्चुअली यान के ऊपर, बट ऑन द अदर हैंड आपने इस साइड से भी फोर्स अप्लाई किया है, तो ये क्या करेगा, सरफेस के साथ रब करते आगे जाएगा, बिकॉज इट हैज अ स्पीड, और यहाँ से आपको फोर्स आ रहा है, तो ये क्या करेगा, सरफेस के बीच में रब करते आगे जाएगा, मतलब फ्रिक्शन करते आगे जाएगा, इन शॉर्ट फ्रिक्शन करते आगे जाएगा। तो इसीलिए म्यू कैसे निकालते हैं, दिस एफ whatever sliding you are taking divided by how much force you are applying, F by n. So here we are considering mu, and whatever force we are applying, n. As we are applying n, equal and opposite reaction is also come from the bottom side, so we'll take 2n. Sorry, मैंने गलत जगह पे 2 को निकाला, म्यू 2n। तो ठीक तरीके से अगर लिखेंगे तो सेकेंडरी में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 2 म्यू n आउटपुट टेंशन T2 इज इक्वल टू, चलो ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है इसके ऊपर। और वैसे भी गेट टाइप का भी रहता है। गेट टाइप में क्या रहता है बताओ, फॉर्मूला किसी को याद है क्या? गेट टाइप में, गेट टाइप टेंशन में सपोज दिस इज द गाइड, आपका यान आ रहा है और यान जा रहा है, और वी कैन मोर स्पेसिफिकली वी कैन डू लाइक दिस, यान आ रहा है यान जा रहा है। गेट टाइप ऑफ टेंशनर में ये सपोज इनपुट टेंशन है और ये आउटपुट टेंशन है, तो कैसे आता है गेट टाइप में? फॉर्मूला क्या है आउटपुट टेंशन का? E raised to mu theta. E raised to mu theta, राइट, सिंपल, E raised to mu theta से हम करते हैं। चलो हम देखेंगे एग्जांपल देखने के बाद आपको आसानी जाएगा। तो राइट डाउन दिस एग्जांपल जल्दी से।
ओके, लिखा सबने? यस सर। ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल थिंग है, यहाँ पे क्या दिया है, yarn is fed to a tension device consisting of 2 discs loaded to give a force of 500 milliNewton. If input tension in yarn is 100 milliNewton and if mu is 0.28, calculate the output tension. तो सिंपल बात दिया है उन्होंने, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है। अगर एग्जाम में डायग्राम नहीं आता है तो आपको निकालना पड़ेगा। इनपुट टेंशन दिया है, आउटपुट टेंशन पूछा है, एन दिया है। सिंपल चीज़ है, अपने को खाली फॉर्मूला यूज करना है। आउटपुट टेंशन का फॉर्मूला क्या है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2 म्यू एन। फॉर्मूला यूज करना है। T1 अपने पास है 100 है, प्लस 2 म्यू कितना दिया है 0.28 इंटू एन, एन कितना है 500, तो यहाँ से भी 500 ही जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 500 ले लेंगे, ऑलरेडी 2 लिया है इसलिए एक बार ही 500 ले लेंगे। इफ यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। कितना था आंसर बताओ मुझे? थ्री एट जीरो 380 मिलीमीटर। 380 मिलीमीटर, तो राइट आंसर 380 मिलीमीटर। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। चलो हम आगे चलते हैं। You just write down this example and this numerical we will see in next lecture. आप इसको लिखो अभी, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में लिखने में टाइम ना जाए 5 मिनट। तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक मिनट है।